نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرعی تقاضا کے 25 نہایت ضروری اصول۔ شرعی تقاضے کے شرعی اصول۔ محترم ناظرین، شرعی تقاضا پورا کرنا مرد اور عورت دونوں کی فطرتی اور جسمانی ضرورت ہے۔ قدرت نے انسانی نسل کی افزائش اور جسمانی لذت حاصل کرنے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا جوڑا بنایا ہے۔ شرعی تقاضا پورا کرنا میاں بیوی کے لیے نہ صرف جائز عمل ہے بلکہ بدکاری، زناکاری اور غیر مردوں اور غیر عورتوں سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی ڈھال بھی ہے۔ محترم ناظرین، لیکن شرعی تقاضے کے بارے میں اسلامی اور شرعی اصولوں سے عدم واقفیت اور لاعلمی کی وجہ سے اس جائز اور حلال عمل میں بھی گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اسی لیے شرعی تقاضے کے دوران شرعی اور طبی اصولوں کو مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ شرعی تقاضے جیسے جائز اور حلال عمل میں گناہوں کے ارتکاب سے بچنے کے لیے شرعی تقاضے کے 25 اصولوں کو بیان کیا گیا ہے۔ شرعی تقاضے سے متعلق 25 اصولوں کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ شرعی تقاضے کے 25 اصولوں میں سے سب سے پہلا اصول: شرعی تقاضے کرنے سے پہلے وہ بستر یا وہ جگہ جہاں ہم شرعی تقاضا کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں وہاں پر کوئی موٹی چادر بچھا دیں تاکہ شرعی تقاضے کے دوران باقی بستر پر کوئی نجاست وغیرہ نہ گر سکے۔ شرعی تقاضے سے پہلے ہی میاں بیوی دونوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم شرعی تقاضا کرنے لگے ہیں تاکہ دونوں راضی بھی ہوں اور خود کو اس عمل کے لیے تیار بھی رکھ سکیں۔ شرعی تقاضے سے پہلے میاں اور بیوی دونوں اپنے اپنے دانت اچھے سے صاف کر لیں، کیونکہ شرعی تقاضے کے دوران منہ کی بدبو ناگوار گزرتی ہے۔ شرعی تقاضا کرنے سے پہلے میاں بیوی دونوں غسل کر لیں تاکہ جسم کی بدبو یا پسینے سے آنے والی بدبو دور ہو جائے، تاکہ شرعی تقاضے کا لطف جسم کی بدبو کی وجہ سے خراب نہ ہو سکے۔ محترم ناظرین، شرعی تقاضا کرنے سے پہلے اپنے پاس 2 صاف ستھرے کپڑے رکھ لیں تاکہ شرعی تقاضا کرنے سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنی اپنی شرمگاہوں کو صاف کر سکیں۔ شرعی تقاضا ایسی جگہ کریں یا ایسے کمرے میں کریں جہاں سے آواز باہر نہ جائے۔ اکثر شرعی تقاضے کے دوران میاں اور بیوی جب لذت حاصل کرتے ہیں تو وہ آوازیں نکالتے ہیں، یا اگر مرد اور عورت شرعی تقاضے کے دوران کوئی بات کرے تو کسی تیسرے کے کانوں تک نہ پہنچے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی تو وہ فالج میں مبتلا ہو گیا۔ چند دن لوگوں نے کھانا پینا دیا، لیکن ایک ہفتے کے بعد لوگ اپنی اپنی دنیا میں چلے گئے۔ اب کھانے پینے کے لیے ظاہر ہے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ وہ بستر پر لاغر اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کی ایک جوان بیٹی تھی۔ اس نے خود کو سجایا، سنوارا اور سڑک پر آ کر کھڑی ہو گئی کہ کوئی آ کر اپنی ہوس کی آگ بجھائے اور مجھے کچھ پیسے دے دے۔ لیکن صبح سے شام تک سڑک کے کنارے کھڑی رہی، کسی نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ شام کو گھر آئی تو والد نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی سچ سچ بتاؤ کہ تو کہاں گئی تھی؟ تو اس نے بتایا کہ مجھ سے آپ کا بڑھاپا اور بہن بھائیوں کی بھوک نہیں دیکھی گئی، تو میں اپنی عزت نیلام کرنے کے لیے چلی گئی۔ یہاں پر میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی کوئی بازارو عورت نہیں تھی، وہ ایک شریف باپ کی بیٹی تھی اور مجبوری ہی اس کو سڑک کے کنارے کھینچ کر لے گئی تھی، لیکن کسی ایک انسان نے بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے
बेटी ने पूछा, ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक बन सवर कर ठहरने वाली लड़की सड़क के किनारे खड़ी हो और कोई नजर उठाकर भी उसकी तरफ न देखे। मोहतरम नाजरीन, वालिद ने कहा, मेरी प्यारी बेटी, तेरी तरफ कोई नजर उठा के कैसे देखता? कहा, अब्बू, इसकी वजह क्या है? कहा, तेरे बाप ने सारी जिंदगी इन आंखों पर हया के पर्दे रखे हैं। शरई तकाजा पूरा करने के 25 असूलों में से 5वां असूल। मोहतरम नाजरीन, बीवी का अपने शोहर को शरई तकाजा पूरा करने से इनकार करना या अपने शोहर को करीब न आने देना, ये बहुत बड़ी गलती है। बीवी की जो है उसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी को शरई तकाजा पूरा करने के लिए बुलाए तो औरत पर वाजिब है कि वो फौरन अपने शोहर की बात मान ले और इसके लिए शरई तकाजा पूरा करने को तैयार हो जाए। लेकिन हां, अगर औरत को कोई शरई उज़र है तो वो इनकार कर सकती है, यानी जैसे हैज वगैरह या तबीयत बहुत ज्यादा नासाज है तो वो इनकार कर दे तो उसे कोई गुनाह नहीं। लेकिन अगर कोई शरई उज़र नहीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत शोहर के लिए फौरी मान जाए। अब औरतों को चाहिए कि वो इस मामले में कोताही ना करे, क्योंकि अगर वो वक्त पर अपने मर्द की बात नहीं मानती, उनकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करेंगी, तो फिर मर्द भी अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी दूसरी जगह नजर रखेगा, जो कि बीवियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसका मर्द किसी और जगह अपनी ख्वाहिश को पूरा करे। और किसी दूसरी जगह ख्वाहिशात को पूरा करना गुनाह भी मर्द से सरजद होगा, जिसका गुनाह न सिर्फ मर्द को होगा बल्कि उस औरत को भी होता है जो अपने शोहर की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाती। बाज़-औक़ात औरत की तबीयत ठीक नहीं होती और घर के कामकाज की वजह से थक भी जाती हैं, तो अगर ऐसी सूरत में मर्द शरई तकाजा पूरा करने की ख्वाहिश करे तो औरत को चाहिए कि अपनी सूरत हाल से शोहर को आगाह कर दे। अब मर्द को भी चाहिए कि ऐसी सूरत में बीवी से जबरदस्ती करने की कोशिश ना करे। शरई तकाजा पूरा करने के 25 असूलों में से 6वां असूल। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम हर काम में अदात को पसंद करता है। बेहतर है कि बीवी से ज्यादा शरई तकाजा ना किया जाए कि वो आजस आ जाए और ना बिल्कुल छोड़ दिया जाए कि मियाँ बीवी की जिनसी ख्वाहिश ही खत्म हो जाए और अज़ू सुकड़ना शुरू हो जाए। मोहतरम नाजरीन, एक बात हमेशा याद रखें कि शरई तकाजा कम से कम करें, क्योंकि जिस चीज को तुम खर्च कर रहे हो ना, वो रोगनी हयात है और चरागे उम्र इसी रोगन से रोशन होता है। शरई तकाजा पूरा करने के 25 असूलों में से 7वां असूल। मोहतरम नाजरीन, एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और फरमाया, हुजूर, मैं पानी वाले इलाके से बहुत दूर और कई माह की मुसाफत पर रहता हूं और मेरी बीवी मेरे हमरा होती है, तो क्या मैं इससे शरई तकाजा पूरा कर सकता हूं और इसकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता हूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ जरूर, शरई तकाजा पूरा कर सकते हो। अगरचा तुम पानी वाले इलाके से 20 साल की मुसाफत पर दूर हो, तब भी शरई तकाजा पूरा करो, और अगर गुस्ल के लिए पानी मयस्सर ना हो तो तुम तमम्मम कर लिया करो। शरई तकाजा पूरा करने के 25 असूलों में से 8वां असूल। मोहतरम नाजरीन, मियाँ बीवी को एक दूसरे की खुशी और राहत के लिए बनाया गया है, एक दूसरे का लिबास बनाया गया है। जिस तरह इंसान लिबास में महफूज रहता है, इसी तरह अच्छे नेक और दीनदार जोड़े अज़वाजी जिंदगी में बुराइयों से महफूज हो जाते हैं। शरीयत ने मियाँ बीवी को इस बात की इजाजत दी है कि वो जिस तरह चाहे एक दूसरे से जिनसी और जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। शरई तकाजा पूरा करने के 25 असूलों में से 9वां असूल। मोहतरम नाजरीन, 5 हालात में बीवी से शरई तकाजा पूरा करना हराम है। अगर कोई शख्स इन 5 हालात में बीवी से शरई तकाजा पूरा करता है तो वो सख्त गुनहगार होगा।
नंबर 1, जब औरत हैज की हालत में हो, जिसे माहवारी भी कहते हैं और पीरियड्स भी, इस दौरान बीवी से शरई तकाजा पूरा करना हराम है। नंबर 2, नफास की हालत में, यानी जब औरत को बच्चा पैदा होता है तो खून चलता है, जिसे नफास कहते हैं। इस दौरान शरई तकाजा पूरा करना हराम है जब तक बच्चा पैदा होने के बाद आने वाले खून रुक ना जाए। शरई तकाजा नहीं करना चाहिए और इस खून के आने की मुद्दत 35 से 40 दिन तक की होती है। नंबर 3, रोजे की हालत में शरई तकाजा पूरा करना हराम है। रमजान की रातों में शरई तकाजा करना जायज है, लेकिन दिन के वक्त रोजे की हालत में शरई तकाजा करना सख्त गुनाह है। हाँ, अलबत्ता अगर मियां बीवी दोनों का किसी उज़र की वजह से रोजा नहीं है तो वो शरई तकाजा पूरा कर सकते हैं। नंबर 4, इत्फाक की हालत में, इत्काफ की हालत में शरई तकाजा पूरा करना हराम है, चाहे आप मस्जिद में बैठे हों या घर के अंदर इत्काफ की नीयत से हैं। तो जब तक महीना पूरा ना हो जाए शरई तकाजा पूरा नहीं करना चाहिए। नंबर 5, एहराम की हालत में भी शरई तकाजा पूरा करना हराम है, चाहे वो एहराम उम्रे का हो या हज का हो। शरई तकाजा पूरा करना हराम है। शरई तकाजा पूरा करने के 25 असूलों में से 10वां असूल, शरई तकाजे के दौरान मर्द और औरत दोनों का फारग होना भी जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि मर्द फारग होकर औरत से अलग हो जाता है। औरत के फारग होने तक मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी से अलहदगी अख्तियार ना करे। अगर मर्द ऐसा करेगा तो मियां बीवी में दूरियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी और कसरत से औरत को फारग किए बिना छोड़ने से मियां बीवी के दरमियान नफरत पैदा हो जाती है। इसीलिए मर्द को चाहिए कि औरत से एकदम से अलग ना हो, बल्कि उसके फारग होने का इंतजार करे। शरई तकाजा पूरा करने के 25 असूलों में से 11वां असूल, मर्द की शर्मगाह का औरत की शर्मगाह में दाखिल होने से ही मर्द और औरत दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। चाहे अंजाल हो या ना हो, गुस्ल वाजिब हो जाता है और गुस्ल करना वाजिब हो जाएगा। शरई तकाजा पूरा करने के 25 असूलों में से 12वां असूल, अगर मियां बीवी दोनों रजामंदी से बच्चे के दरमियान वक्फा चाहते हों तो वक्फे की नीयत से वो शरई तकाजे के दौरान अपनी मनी का अखराज शर्मगाह की बजाय बाहर भी कर सकते हैं। इसमें कोई गुनाह नहीं। शरई तकाजा पूरा करने के 25 असूलों में से 13वां असूल, शरई तकाजे के बाद जब मर्द और औरत दोनों का फारग होकर अलहदा हो जाएं तो दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि पेशाब कर लें ताकि शर्मगाहों के अंदर रह जाने वाली मनी बाहर निकल जाए। शरई तकाजा पूरा करने के 25 असूलों में से 14वां असूल, मियां बीवी का शरई तकाजा करते वक्त की बातें अपने दोस्तों, सहेलियों या किसी और से शेयर करना बेहयाई की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शरई तकाजा की बातें दूसरों से शेयर करना सख्त गुनाह है और सख्ती से मना फरमाया है। हाँ, अलबत्ता किसी बात का इल्म नहीं या किसी बात की समझ नहीं आती तो वो बातें किसी डॉक्टर, हकीम या मुतलका शख्स से नॉलेज लेना या देना जायज है। शरई तकाजा पूरा करने के 25 असूलों में से 15वां असूल, शरई तकाजा के फौरन बाद गुस्ले जनाबत कर लेना बेहतर है, लेकिन अगर वक्ती सिर्फ अस्तंजा किया जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। ताहम इसके बाद आने वाली नमाज का वक्त खत्म होने से पहले पहले गुस्ल करना जरूरी है ताकि नमाज कज़ा ना हो जाए। शरई तकाजा पूरा करने के 25 असूलों में से 16वां असूल, शरई तकाजा का कोई खास वक्त नहीं, जब चाहें शरई तकाजा पूरा कर सकते हैं, इसमें कोई ममनियत नहीं। शरई तकाजा पूरा करने के 25 असूलों में से 17वां असूल, बीवी को शरई तकाजा के पूरा करने के लिए तैयार करते हुए इसके पेशानों को चूमना जायज है, यानी औरत की छाती को मुंह में लेके चूस सकते हैं और इसकी छाती से खेल सकते हैं, लेकिन छातियों को चूसते वक्त एक बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि बीवी का दूध मुंह के अंदर चला जाए, क्योंकि बीवी का दूध मुंह में जाकर मकरूह
अमल हो जाता है और हलक से नीचे उतर जाए तो हराम हो जाता है, जिसका सख्त गुनाह है और तौबा करना लाजम है। अलबत्ता इससे मियां बीवी के निकाह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शरई तकाजा पूरा करने के 25 असूलों में से 18वां असूल, मियां बीवी का शरई तकाजा के लिए मुकम्मल लिबास उतारना जायज है और दोनों एक दूसरे के जिस्म को मुकम्मल देख भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि मुकम्मल नंगे होकर शरई तकाजा पूरा ना करें तो ज्यादा बेहतर है। मुकम्मल लिबास उतारने से जिस्म की कशिश कम हो जाती है और मियां बीवी दोनों एक दूसरे के जिस्म से जल्दी ही बेजार हो जाते हैं। शरई तकाजा पूरा करने के 25 असूलों में से 19वां असूल, बीवी की सेहत का मसला हो या इसके अलावा कोई और दूसरा शरई उज़र हो, अगर वो शरई तकाजा पूरा ना करना चाहती हो तो उसको शरई तकाजा पूरा करने के लिए मजबूर मत करें। शरई तकाजा पूरा करने के 25 असूलों में से 20वां असूल, शरई तकाजा बीवी की अगली शर्मगाह में ही करना जरूरी है। शरई तकाजा पूरा करना के 25 असूलों में से 21वां असूल, शरई तकाजा करने के लिए किसी खास पोजीशन में शरई तकाजा पूरा करना जरूरी नहीं। आप जिस तरह चाहें, जैसे चाहें, जो पोजीशन मुनासिब लगे उस पोजीशन में रहकर शरई तकाजा पूरा कर सकते हैं। यानी अगर शरई तकाजा के दौरान मर्द ऊपर हो और औरत नीचे हो या इसके बरक्स हो, कोई भी पोजीशन हो, तमाम जायज है। शर्त यह है कि मर्द अपना अज़ू औरत की अगली शर्मगाह में दाखिल करे। शरई तकाजा के 25 असूलों में से 22वां असूल, शोहर के लिए अपनी बीवी की शर्मगाह को छूना इस्लाम की पकीज़ा तालीमात के खिलाफ और बेहयाई का अमल है। इस तरह बीवी के लिए भी मर्द का अज़ू मुंह में लेना बेहयाई का अमल है और ये काम शोहर और बीवी दोनों के लिए ही तिब्बी तौर पर भी बीमारियों का सबब बन सकता है। इस अमल से बचने की कोशिश करनी चाहिए। शरई तकाजा पूरा करने के 25 असूलों में से 23वां असूल, बीवी की पिछली शर्मगाह यानी दबर के मुकाम में पिछले रास्ते के पैखाने वाली जगह पर शरई तकाजा पूरा करना हराम है। अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों पर लानत डाली है जो औरत की पिछली शर्मगाह में जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी की दबर में आता है वो मालून है। शरई तकाजा पूरा करना के 25 असूलों में से 24वां असूल, मियां बीवी दोनों इकट्ठे गुस्ल करना जायज है। दोनों इकट्ठे गुस्ल कर सकते हैं, इसमें कोई ममनियत नहीं। इसीलिए अगर कोई मियां बीवी एक साथ गुस्ल कर लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। शरई तकाजा पूरा करने के 25 असूलों में से 25वां असूल, मोहतरम नाजरीन, शरई तकाजे से मुतल्लक जितनी बातें भी आपके साथ शेयर की गई हैं, ये तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ मियां बीवी के दरमियान होनी चाहिए जो कि शरई निकाह में एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो चुके हों। अगर शरई तकाजा निकाह के बगैर इस फेल को सर अंजाम दिया जाए, ऐसे रिश्ते में मुंसलिक हो जाए जो शरई तकाजे का सबब बने, तो वो गुनाह के ज़मरे में आता है जिसे ज़िना कहा जाता है, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये सबक आमोज और मोटिवेशनल और इस्लामिक पर्पस पर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।